Yes, sir. Okay, Yes, okay. So Yes, sir. sir. yes, yes, yes. Yes, sir. So yes, yes, yes. Very good evening. Very good evening. Yes. So basically, today we are going to study our new topic, which is our determinant chapter. But before starting the chapter, actually, like I will introduce one of our new faculty, that is Subham sir, with us, and he will be teaching today. And he is from also RI Mysore, and he is doing like pursuing his MSc in mathematics domain, and he has also a much more of experience, and he has also visited to MTTS also, like it's a research program in mathematics. So he will be teaching today the determinant topic. Okay. So are you all ready to interact with sir? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Shubham sir, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Shubhasish, sir, for introducing. So kindly interact with our students and start the today's topic. Okay, so good evening, everyone. Good evening. How are you all? Good evening, Good sir. evening, sir. Yes, yes. You can Good turn your evening, sir. mic and interact with me. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Yes, everyone. Okay, so how are you all? Fine. Good, yes, sir. sir. Fine. Yes. Okay. Okay. So, as Subhasish sir has already introduced me, that my name is Subham Pradhan, and I'm pursuing MSc Mathematics in RI Mysuru. Okay. So, I'll be taking few of your class on the topic determinants and some other topics. Okay, is it fine with you? Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, sir. okay, good, good. So, today we'll be dealing with the determinants. Fine. So, let us see what are the contents that are available in the syllabus. So, first we'll study about the determinants of a square matrix. Okay, we'll learn the definition of determinant and go on the problems. Fine. Then minors and cofactors, application of determinants, and there are few more topics which we'll be covering in this class. Okay, so everyone is ready with the pen and paper? Yes. Yes? Okay, good, good. So, can any of you tell me what is determinant? What is the idea about determinant? Yes, at least you can type in the comment box. Okay, so if no one is telling, then let me say tell. Okay, so determinant is actually a scalar value of a matrix. Okay, so it is scalar value of a matrix that can be computed of the entities of the square matrix. So हम जो determinant की बात कर रहे हैं वो केवल और केवल square matrix के लिए ही डिफाइंड है. स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसके लिए हमारा डिटरमिनेंट्स डिफाइंड है. ठीक है, और क्या बोल रहा है कि हम कैसे डिनोट करते हैं इसे. लेट्स सपोज आई हैव ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए. So if I want to denote it by determinant, so I'll just put mods. Okay, this is what I call determinant of A. ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, और det of A और det of A. So this is called what? Determinant of A. तो हम क्लास में पूरा का पूरा ऐसे ही इसको डिनोट करने वाले हैं. क्लियर क्लियर? Yes, sir. ओके, गुड. सो फर्स्ट देख लेते हैं कि हमारा जो 1x1 ऑर्डर है, ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं क्या, डिटरमिनेंट जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अवेलेबल है. दैट मीन्स 1x1 हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4+4 हो सकता है. ऐसे जितने भी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस पर डिफाइंड है हमारे क्या डिटरमिनेंट्स. तो पहले देख लेते हैं कि 1x1 जो मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करें. ओके, सो आई हैव ए मैट्रिक्स 1. ओके, लेट्स सपोज दिस वन ए मैट्रिक्स. अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ना निकालना चाहूँ तो क्या होगा ना, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज dt ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 ही आएगा. जो वैल्यू इन द ब्रैकेट गिवन है वही वैल्यू हमारा डिटरमिनेंट है. ठीक है, am I clear?
clear till now? Yes. Okay. Okay, good. So अभी हमारा सेकंड आता है क्या? 2x2 मैट्रिक्स. 2x2 मैट्रिक्स. Okay. So let's suppose I have a matrix 1, 2, 3 and 4. Okay. So this is my matrix. और इसको मैं नोट कर रहा हूँ A मैट्रिक्स. So अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहूँ, let's suppose I find the determinant. So it will be how much? So there is a trick to find this one. What is the trick or what is the formula? So we'll go diagonally. Okay. So multiply 1 into 4 like this. Then we'll go minus and 2 into 3. Minus 2 into 3. So this is like, ठीक है, ऐसे डायग्राम कुछ स्ट्रक्चर आएगा, ऐसे डॉट 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 फिर ऐसे. तो 1 into 4 में मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद माइनस साइन डालूंगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरे डायगोनल्स को. Am I clear? So now Yes. अभी आप मल्टीप्लाई करो, उसका वैल्यू मतलब बताओ. What is the value? Minus Minus 2. So that is 1 into 4, that is 4, minus 6, that is minus 2 is our answer. So determinant of a matrix of 2 cross 2 is now our minus 2 for this particular example. ठीक है, अगर ऐसे कुछ और मैट्रिक्स आएंगे तो क्या आप इसके रिलेटेड कर पाओगे? Yes, sir. Okay, good. So अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट वन, दैट इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का कैसे डिटरमिनेंट निकाले. ओके, सो आई हैव लेट्स सपोज A B C 1 2 3 4 5 6. अब can you find the determinant? Can you find the determinant? How? ना, अगर मैं 3 क्रॉस 3 का क्या कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो इसमें मेरा 2 क्रॉस 2 का जो फॉर्मूला है वही एप्लीकेबल होने वाला है. सो आई डू A, तो इसको मैं कट आउट कर लूंगा, A इंटू 2 3 5 6 माइनस B. अगर B की बात कर रहा हूं तो क्या होगा मेरा? So 1 3 4 6 plus C into 1 2 4 5. 1 2 4 5. तो पूछो क्या आप, सर यहाँ पर माइनस क्यों डाला? सर आपने यहाँ पर माइनस डाल दिया, आपने गलत कर लिया. सो बच्चों हमारा यहाँ पर एक रूल है क्या, तो ये हमारा प्लस आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, यहाँ पर प्लस माइनस, ओके, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ये वाला आपने मैट्रिक्स लिया होगा कि जो पोजीशन होता है लेट्स सपोज ए आई जे, अगर आई प्लस जे हमारा क्या आता है ना, इवन नंबर आता है, यहाँ पर हम प्लस वैल्यू पुट करते हैं, और अगर आई प्लस जे का वैल्यू ऑड नंबर आता है तो हम नेगेटिव साइन को उसे डिनोट करते हैं. तो सिमिलरली ये जो हमारा ए का वैल्यू है, सो 1 + 1 दैट इज 2, दैट इज इफ आई टेक दिस वन ए आई जे दैट इज ए 1, 1 और ए 1 1. सो यहाँ पर आई कितना है ना, 1 है, और जे भी 1 है, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 है. तो यहाँ पर मैंने इसके पहले प्लस साइन डाला है. और सिमिलरली यहाँ पर बी का जो वैल्यू है हमारा, यहाँ पर कितना आएगा ना, दिस इज माइन a of I z is equals to a 1 2. सो यहाँ पर I प्लस जे कितना आएगा ना, 1 + 2 दैट इज 3. तो यहाँ पर हमारा ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका जो पोजीशन वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा. क्लियर? Yes, अगर sir. आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो. ठीक है, ओके, गुड फाइन. सो यहाँ पर ऐसे करके हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने वाले हैं. सो दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो इन योर 11th and 12th क्लास. We'll just be briefing about it. Fine. So यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा ना, a का हो गया दैट इज a इंटू 12 माइनस 15 माइनस b इंटू कितना आएगा 6 माइनस 12 प्लस c इंटू 5 माइनस 8. तो भी बताओ मेरे को वैल्यू कितना आएगा, ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा?
-3a plus 6b minus 3c. -3a plus 6b minus 3. Okay. Plus 6b minus 3c. Same, correct? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, ठीक है. सो ये होगा हमारा बेसिक बेसिस का 3 × 3 डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना होता है. ठीक है, अभी देखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो आई हैव अनदर मैट्रिक्स 5 and DEF. ठीक है, अब इसका आप डिटरमिनेंट निकाल के मेरे को बताओ कि कितना आ रहा है. क्विक इजी इजी क्वेश्चन है, इसको बस कवर कर लेंगे हम. करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है. यस, ओके. सो मैं स्टार्ट करता हूं, आप साइमल्टेनियसली करते रहना और मेरे को बताना है कि आंसर कितना है. ठीक है, सो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से एक्सपेंडिंग ए से. ठीक है, तो जब मैं ए के लिए ले रहा हूं तो क्या होगा, मैं इस रो और इस कॉलम को मैं हाइड कर लूंगा और मैं लिखूंगा ए इंटू कितना आएगा ना 3 5 ई एफ का जो डिटरमिनेंट है. उसके बाद माइनस साइन बी, अगर बी की बात कर रहा हूं तो मैं क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम को मैं हाइड कर दूंगा. तो कितना आएगा मेरा ना 2 5 डी एंड एफ. सिमिलरली प्लस सी के लिए कितना आएगा, प्लस सी के लिए ये जो मेरा रो और ये कॉलम हाइड कर लूंगा, मेरा आएगा 2 3 डी एंड ई. ओके, नाउ एक्सपैंड इट एंड टेल मी, expand it and a to 3f minus 5e minus b equal into 2f minus 5d plus c into 2e minus 3d. Clear? Okay, I know it might be boring little bit because these are some basic things. हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो आप इंटरेक्ट करते रहना. ठीक है, am I clear? Is the same? Yes. Yes, okay, okay, good, good. So अभी देखेंगे हम कि माइनर क्या है और कोफैक्टर्स क्या है. ठीक है, तो आपका आइडिया क्या है, व्हाट इज माइनर, व्हाट इज कोफैक्टर? एनी आइडिया, बेसिक आइडिया? व्हाट इज माइनर, कोफैक्टर्स, और एटलीस्ट इसका फॉर्मूला बता दो. ओके, सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जो माइनर है हम उसको क्या बोलते हैं, ये हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं एम ऑफ आई जे से, और को फैक्टर है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं ए आई जे या फिर सी आई जे. सी आई जे, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज ए आई जे फॉर को फैक्टर्स. ठीक है, तो एम आई जे कैसे निकालना होता है मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो ए आई जे वो क्या चीज है. ठीक है, ये ए आई जे है वो कुछ नहीं, बस इसका फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 टू द होल पावर आई प्लस जे इंटू एम आई इंटू जे. सो इस फॉर्मूला को याद कर लो, ये हमें काम में आएगा. ठीक है, और आई प्लस जे क्या है ना, आई इज इक्वल्स टू द रो नंबर एंड जे हमारा है क्या, कॉलम नंबर. Okay, so steps to find cofactors and the minus. तो माइनर के लिए हम क्या करना है कि ओके, तो क्या करना है, माइनर पहले निकालना होता है, फिर चेक करना होता है कि आई प्लस जे का वैल्यू कितना है और
इज इट इवन और ऑड, देन हम क्या करने वाले हैं कि नेगेटिव साइन पुट करने वाले हैं. इफ इट इज इवन नंबर और ऑड नंबर, पॉजिटिव ऐड करेंगे जब हम इवन नंबर होगा. ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन देन विल गेट टू नो. लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है. लेट्स सपोज -1 2 3 -1 2 -4 2 4 एंड 8. ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है. तो हम माइनर निकालने वाले हैं. मतलब माइनर क्या होता है कि बच्चों ना, हर एक एलिमेंट के लिए हमारा माइनर निकालता है. तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं निकालू माइनर ऑफ A11 जो एलिमेंट है वो कौन सा वाला है? जो हमारा A11 है, कौन सा एलिमेंट है? -1. यस, कम ऑन, -1, करेक्ट. सो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा आएगा माइनर, दैट इज M11. कितना आएगा? तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसको और इसको हम हाइड कर देंगे. तो ये जो हमारा वैल्यू है उसको हम माइनर बोलते हैं. ठीक है, दैट इज 2 -4 4 एंड 8. इसको एक्सपांड करने के बाद जितना भी वैल्यू आएगा वो हमारा MIJ दैट इज M11 होगा. ठीक है, तो इसको एक्सपांड कर लो और मेरे को बताओ व्हाट इज द वैल्यू. 32. कितना आएगा? 32. 32. Okay, good. 32. Similarly, can you find for M12? M12 कितना होगा? 0. M12 के क्या करेंगे? Yes, correct. 0. कैसे आया? मैं इन दोनों कॉलम और रो को हाइड कर लिया. कितना है मेरा? That is -1 2 2 4. अब इसको एक्सपांड करने के बाद हमारे पास आएगा कितना? 0. ओके, सो M13 कितना आएगा? -8. M13 -8. गुड. ओके, सो M21 इसके लिए +4. हाँ, यस, 4. +4. 4 +4, करेक्ट. सो नाउ M22 के लिए -14. -14, गुड. M23 -8. M23 -8. Others also, tell me. M31 -14. -14. yes -14. -14 14. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so M32 7. 7, yes, 7. Then for M33 0. +7. +7. M33 0. मतलब ये वाला 0, yes, 0, करेक्ट. 0 बिकॉज अब इसको हम एक्सपांड करेंगे. -1 2 -1 2, तो कितना आएगा ना? -2 minus of -2, that is -2 plus 2 is equals to 0. Okay, understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So this is for minor. Okay, this is for my minor. अगर हम आप चलेंगे हमारा कोफैक्टर्स के लिए, तो मैंने अभी क्या बताया कि कोफैक्टर्स के जो है हमारा, दिस इज आवर फॉर्मूला. कोफैक्टर इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ माइनर. जब हमारा माइनर का वैल्यू जब i+j होगा ऑड नंबर, तब हम पुट करेंगे नेगेटिव साइन. जब हमारा i+j इवन नंबर आएगा तो वहां पर मैं प्लस वैल्यू पुट करूंगा.
ठीक है, देखते हैं कैसे. लेट्स सपोज इसके लिए A11 के लिए, ठीक है, माइनर रहेगा M11 और हमारा कोफैक्टर कितना आएगा A11. सो यहाँ पर जो I प्लस जे का वैल्यू है, I प्लस जे का वैल्यू कितना है 1 + 1 दैट इज 2. सो 2 इज एन इवन नंबर, Yes, इज एन इवन नंबर. सो मैं क्या करूंगा ना, यस, सो A11 जो होगा वो M11 के बराबर होगा. ओके, इट इज इक्वल्स टू M11, ठीक है. बट व्हेन आई कमिंग टू A12, ओके, तो यहाँ पर I प्लस जे का वैल्यू कितना है 1 + 2 दैट इज 3, और ये क्या है मेरा ऑड नंबर. अगर ये ऑड नंबर है तो मेरा जो भी माइनर था उसमें मैं -1 मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. क्लियर? yes, sir. सो मेरा जो A12 होगा दैट इज माइनस ऑफ M12 होगा. ओके, अंडरस्टूड. सो सिमिलरली, मतलब इसका एक अगर शॉर्टकट फॉर्मूला बताओ तो हमारे पास जो पहले हमने पता था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर रहे हैं. माइनस की जगह पर माइनस पुट कर रहे हैं, प्लस की जगह पर प्लस पुट कर रहे हैं. करेक्ट, द सेम इज हैपनिंग. ओके, सो अगर मैं अभी मेरे माइनर को सजाना चाहूँ एक डिटरमिनेंट फॉर्मेट में तो कैसे होगा. दैट इज माई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Okay, so let us calculate the values and put it there. 32, 0, -8, 32, then 0 minus 8, No minus 0 minus 8. Okay, then next row -4, -14, 8. okay, -4, -14, -4, -14. Okay, yes, sir. 8. 8. 8. हाँ, अभी लास्ट रो -14, -14, -7, 0. then -7, then 0. Correct. Okay, so this is what my cofactors look like. ठीक है, ठीक है. अभी मेरे को बताओ कि इसका जो माइनर था कैसा आएगा. माइनर M11, M12, 12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. बताओ कितना है मेरा. 32, 0 minus. Yes, 32, 0 Zero. -8, -8. Good. Then 4, -14, 4 minus 14. Minus. 4 minus 48 and -4 -7 0. ओके, सो यहाँ पर देखो कि कुछ नहीं हो रहा कि जहां पर भी मेरा माइनस है, लाइक माइनस का पोजीशन है, ये वाला मेरा, ये वाला मेरा, ये वाला मेरा, और ये जो चार है मेरे माइनस का पोजीशन है. ठीक है, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये जो माइनस का पोजीशन है बस क्या हो रहा है कि माइनस मल्टीप्लाई हुआ है. यहाँ देखो, ठीक है. ओके, सो हियर इज -8, हियर वी हैव -8. ओके, तो यहाँ पर बस माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ नहीं है. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. Yes, sir. Understood? Okay, fine. Okay, so next, let us move to next concept, that is PTRs. Okay, let us learn some points to remember. Okay,
what it says, the sum of product of elements of any row with its corresponding cofactors of the same row gives us the determinant value of the matrix. That means let's suppose मेरे पास है A11, A12 and A13. अगर मैं इसको गुना कर दूं किससे, ना corresponding cofactors है, that is A11, capital A11, capital A12 और capital of A13 से, और मैं सबको सम कर दूं, if I add them, then को मेरे को क्या मिलेगा ना, I'll get the modulus of A, determinant of A. Clear? Yes, sir. Clear? Okay. So similarly, I can do for A21 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसी के कोफैक्टर्स से, that is capital A21 plus A22 को capital of A22, A23 को capital of A23 से, then I'll also get the same value, that is determinant of A. Same also goes for columns also. अगर कॉलम की बात करूं तो सेम ही होता है, ठीक है. Okay, so now let us move to the next PTR, that is इसका मतलब ये जो है उसके रिलेटेड है, थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, that is sum of product of the elements of any row with the cofactors of another row. मतलब एक रो है मेरा, let's suppose ऐसा है, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है. अगर रो 1 के एलिमेंट्स को मैं रो 2 के कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को मिलेगा बस 0 अंडा, ठीक है. सर फॉर एन एग्जांपल मेरे पास अगर यस सर प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखाना सर. सर प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखाना सर. हाँ ठीक है, हाँ ये वाला रो, इसमें सर, हो गया. बोल रहा है कि सेम रो का अगर एलिमेंट्स को सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, इसमें बोल रहा है कि एक रो है उसका जो एलिमेंट्स है दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, यहां पर 0 आने वाला है. दैट मीन्स अगर A11 है और A12 है, A13 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो सेकेंड रो और थर्ड रो के कोफैक्टर से, दैट इज A of 21, A of 22, A of 23 से, and I sum up them, then I'll get 0. Okay, same goes for other rows also and other columns also. Am I clear till now? Yes, sir. Am I clear till now? यस सर. यस सर. Okay, so try कर लेते हैं कि whatever sir is saying, is it correct or not? Okay, so let us say I have a matrix or a determinant that is -1, 2, 3, -1, 2, -4, 2, 4 and 8. Okay, so find its cofactors for the first row. Tell me what will happen when I do A11 into A of 21. निकालो A of 21, निकालो कितना आ रहा है? A of 21, how much is 32? Sorry, sir. 32. क्या करते हो? Minus इसके लिए बस 28. इसको हाइड कर दो. -28. A21 Is it? कौन सा वाला? A21. A21 सर. तो 8 into 2 -4 into 3 होगा. Okay. -4 into 0 कहाँ है? 16 minus 14. -14. हाँ. सर ये A11 है ना, हमको A21 निकालना है. हाँ 81 निकाला है हमको. हाँ ओके, हाँ A21 निकालना है. A of 21 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में.
कितना आ रहा है? माइनस माइनस 4. हाँ, यस, सो 4. ओके, 28 कहाँ से आ रहा था? ठीक है, अभी सेम करो मेरे a ऑफ 1 2 इंटू a ऑफ 2 2 के लिए कितना आ रहा है? सर -4 है 821 यस, 821 -4. -4 समझ गया सर, समझ गया। समझ गया? अगर दिक्कत है तो बताओ, फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं. टू इंटू -14. Yes, 2 into minus of 14 shall get -28. अभी मेरे को बताओ कि कितना आ रहा है? a of 1 3 into a of 2 3 कितना आ रहा है? थ्री इंटू प्लस कितना आ रहा है? 3 into 8 that is 24. अभी अगर मैं क्या करता हूँ, तीनों को सम कर लेता हूँ, that is 4 plus -28 plus 24 कितना आएगा? 0 आ रहा है? यस 0 आ रहा है ना? So it is verified. So this is verified. Clear? Next चले. यस सर. ओके ओके, सो अभी हमारा चलाएगा कि सेम रो को सेम रो के एलिमेंट्स को सेम रो के, अगर मैं कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, सेम रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं. अगर आप देखते हैं कि एक रो है और दूसरे कॉलम है, तो इनके एलिमेंट्स और इसका जो कोफैक्टर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं है कि एक आएगा, दो आएगा या फिर 0 आएगा. तो इट कैन बी एनीथिंग, देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट. So sum of product of element of a row with the cofactors of another column, row को column के साथ, ठीक है, तो there is nothing special, it can give anything. ठीक है, ओके, तो चलते हैं अभी हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की तरफ. लेट अस सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स. ओके, हालांकि ये जो चीज है आपके सिलेबस से काट दिया गया है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए और जब आप कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा जानना जरूरी है, जो कि आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. दैट मींस अगर मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ एंड एक्स वाई जेड, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड, ठीक है, ये मेरा एक डिटरमिनेंट है. ओके, सो अगर मैं इसके रो और जो कॉलम्स है, रो और कॉलम्स है, इनको मैं अगर इंटरचेंज कर लूं तो मेरे को कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी, उसका वैल्यू सेम ही आएगा. दैट इज आई राइट ए बी सी, देन डी एफ को डी ई एफ एंड एक्स वाई जेड. ठीक है, तो ये दोनों बराबर ही होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ओके, दिस इज व्हाट माय फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज. ओके, कमिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी. यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर हम दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो वहां पर नेगेटिव साइन बस आ जाएगा. ठीक है, लेट्स सपोज ए बी सी एक्स वाई जेड एंड 1 2 3. तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि ना मेरे रो 1 और रो 2 में अगर इंटरचेंज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 1 2 1 2 3, सो आई राइट बी वाई 2 ए एक्स 1 सी जेड 3. तो इसमें क्या होगा कि कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, बस इसके पहले में एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने वाला हूं. क्लियर है? यस सर. फर्स्ट द प्रॉपर्टी क्लियर है? ओके, गुड, फाइन. अब देखें तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ. यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल से मतलब सेम है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 आएगा. लेट्स सपोज 1 2 3 है, एक्स वाई जेड है और 1 2 3 फिर से आ गया.
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा रो 1 और रो 3 दोनों सेम है, दैट इज आइडेंटिकल है। तो इसका जो अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, क्यों होगा मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। क्लियर ना, कहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड, Yes, sir. फाइन, ओके great. Okay, so if each element of a row or a column of a determinant is multiplied with a constant k, then its value gets multiplied by k. मतलब जैसे आपने पढ़ा हुआ कि जो हमारा मैट्रिक्स था, अगर ए लेट्स सपोज के वैल्यू है, वहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ और एक्स वाई जी के साथ, तो क्या होगा ना, मेरे सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उनके साथ मेरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज के ए के बी के सी के डी के ई एंड के एफ के एक्स के वाई एंड के जेड। दिस इज फॉर मैट्रिक्स। बट डिटरमिनेंट में क्या हो रहा है कि अगर मेरा एक डिटरमिनेंट है ये वाला, तो इसमें क्या होगा मेरा ना, किसी भी एक रो या फिर किसी भी कॉलम के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट रो, ओके, दैट इज के ए के बी एंड के सी। यहां पर जो हमारे डी ई एफ एंड एक्स वाई जेड है वो अनचेंज रहेंगे, तो वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वहां पर हम के मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। क्लियर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड। सो सिमिलर हम कर सकते हैं कैसे, लेट्स सपोज आई हैव 1 2 3 9 8 2 और ए बी सी, लेट्स सपोज ए बी सी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अगर के को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आई कैन मल्टीप्लाई एनीवेयर इन एनी रो और एनी कॉलम, एंड आई कैन राइट लाइक 1 2 3 देन ओके 1 2 के ए बी के सी एक्स वाई के जेड। तो यहां पर मैंने क्या किया, जो हमारा सेकेंड कॉलम है वहां पर मैंने के मल्टीप्लाई कर दिया। ओके गुड टू गो, Yes, समझ sir. में आ गया? ओके गुड। अदर्स Yes, sir. अदर्स ओके ओके गुड, Yes, sir. Got it. ठीक है, गॉट इट, फाइन, गुड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if some or all elements of a row or a column of a determinants are expressed as a term sum of two or more terms, then determinant can be expressed as a sum of two or more determinants। मतलब सिंपल सी भाषा में क्या बोलूं कि मेरे पास अगर है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ, अगर ओ पी क्यू एक्स वाई जेड है हमारे पास एक determinant, so I can write it like A0 AOX CPY EQZ plus ये हमारा सेकेंड वाला that is plus BDF OPQ XYZ। मतलब अगर हमारे पास एक रो जिसमें कि हमारे सम के एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिख लिया ए के कंडीशन में, सी की कंडीशन में एंड ओके सी की कंडीशन एंड ई की कंडीशन में। सेकेंड में क्या कर रहा हूं कि बी डी और ए को लिख रहा हूं। क्लियर है? मतलब मेरे पास लेट्स सपोज एक डिटरमिनेंट है, तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं। Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Okay, good. Fine. So this is what it says. Next property. यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास एक लेट्स सपोज डिटरमिनेंट है ए बी सी 1 2 3 एंड 3 4 5, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, गौर से देखना। रो 1 को मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी रो से सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। For example, I want to make row 3 as row 3 minus row 2.
तो मैं ये कर सकता हूँ विदाउट एनी चेंजेस इन द वैल्यू। अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना चाहूँ और इसको करने के बाद जो मेरा डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, देख लेते हैं व्हाटएवर इज सेइंग सर इज करेक्ट और नॉट। सो ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3, ओके, रो 3 माइनस रो 2 करूंगा तो कितना आएगा? 3 माइनस 1 दैट इज 3 minus 2। यस यस, 4 minus 2, हाँ, 4 माइनस 2 दैट इज अगेन 2, देन 5 minus 3. 5 माइनस 3 अगेन 2। ओके, तो इन दोनों की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो एकदम सेम ही आएगी। ओके, इसकी जो डिटरमिनेंट है, और लेट्स सपोज दिस इज माय डिटरमिनेंट ए, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए will be equals to determinant of, let's suppose this one B, so determinant of B, so they will be equal. So determinant of A is equals to determinant of B. ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज मेरे रो 3 को क्या करूंगा मैं रो 3 माइनस रो 2 करूंगा तो कितना आएगा? यहाँ पर रो 3 माइनस रो 2 करूंगा तो कम ऑन, दिस इज 1 2 3 सेम एज इट इज, 4 5 6 एज इट इज, 3 3 3 हाँ 3 3 3। ओके, अगर मैं फिर से कर रहा हूँ क्या ना, मेरा जो रो 2 है दैट आई टेक रो 2 माइनस रो 1 फॉर दिस वन। ओके, तो कितना आएगा मेरा, भाई बताओ? 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ओके, अब अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं तो कितना आएगा? वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स 0। यस, बिकॉज वी हैव टू रोज एज आइडेंटिकल्स। ठीक है, अब ये, हाँ यस यस, नो सर नथिंग। ओके, सो अब ये जो मेरा डिटरमिनेंट है इसको एक्सपांड करो और वैल्यू बता मेरे को कितना आ रहा है। पहला वाला, ये वाला कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको एक्सपांड करो और बोलो कि कितना आ रहा है वैल्यू। बताओ, इज इट कमिंग 0? 0 आ रहा है ना? तो अगर हम Yes, sir. कोई भी ऑपरेशन करें रो पे या फिर कॉलम पर तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जैसे किया है, यहाँ पर एक ऑपरेशन क्या है, रो ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसको करने के बाद मेरे जो इनिशियल वैल्यू था डिटरमिनेंट का और जो फाइनल आ रहा है तो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Okay, good. Fine. So we देखते हैं next topic, that is application of determinants in finding the area of the triangle. Okay. Area of the triangle find करेंगे using a determinant. Fine. तो इसको आपने पढ़ रखा होगा कहाँ पर ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। Okay. Can anyone tell me what is the formula for the area of triangle? Area is equals to half of x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स की चर्चा करने वाले हैं जहां पर कि if the value of the determinant comes negative,
ओके, ये मेरा डिटरमिनेंट है, तो इसका जो वैल्यू पॉजिटिव में आ सकता है या फिर नेगेटिव भी आ सकता है। अगर मेरे को नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो मैं उसका मॉडुलस लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एरिया जो है ट्रायंगल का वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद जो भी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा हो या फिर नेगेटिव आ रहा हो, तो दोनों में मैं मॉडुलस ले लूंगा ताकि मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिल सके। ओके ओके, क्लियर एवरीवन, क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब ये आ गया कि वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ठीक है। अगर मेरा वैल्यू डिटरमिनेंट का 0 आ गया तो वो तीनों ट्रायंगल नहीं है, वो तीनों कोलिनियस है। लेट्स सपोज लाइक दिस P Q R, वो तीनों कोलिनियस हो जाएंगे अगर मेरा एरिया 0 आया तो। ठीक है, ओके। सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, इसको फाइंड करो और मेरे को बताओ कितना आ रहा है। P गिवन है कितना 2 3, Q इज 3 4 एंड R है 0,7। तो अब ट्राइंगल का एरिया निकालो, कितना आ रहा है? निकाल के बताओ मेरे को। So area will be half of x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. ठीक है, तो put the formula and the values. x1 कितना है हमारे पास? x1 है हमारे पास 2, तो 2, x2 3 and x3 is 0. y1 कितना है? 3 है, y2 4 and y3 is 7. Then 1, 1, 1. Now find out the determinant and tell me what is the value of area. 3 square unit. Yes, 3 square units, correct. Okay, 3 square units. बाकी सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Okay, others? बाकी सारे बच्चों बताओ, is it correct? Okay, yes, so I can see lot of comments. Rahul Dalai 3, Avipsa 3, Swastik 3, yes, correct. So 3 is the answer. 3 square units. Fine. तो बच्चों, now we will be dealing with the adjoint and inverse of a matrix. Okay, तो देखते हैं कि adjoint क्या होता है और inverse क्या होता है। ठीक है, first let us talk about what is adjoint. ठीक है, ये जो adjoint वर्ड है इसका मतलब है कि ना हम अगर हमें दिया हुआ है ऐसा, लेट्स सपोज A is a matrix like this. ओके, तो हम इसका क्या करेंगे ना, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम इसका जस्ट ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद जो भी हमें मैट्रिक्स मिल रहा है उसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। दिस विल बी कॉल्ड एज एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे एक और एग्जांपल के साथ। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, a is equals to -1 2 -3 4. Let's suppose this is my matrix 2, 2 मैट्रिक्स 2 into 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहला स्टेप, पहले हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, सो कोफैक्टर्स ऑफ A11 कितना आएगा ना, हमारा अगर इसको हम हाइड कर दे तो हमारा आएगा 4। ओके, तो आएगा इधर 4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें A12 के लिए कितना आएगा, A12 के लिए कितना आएगा, इसको हाइड कर देंगे तो -3। बट यहाँ क्या है, हमारा यहाँ 1 i प्लस ए इक्वल्स टू हमारा कितना था ना, हमारे यहाँ पर 1 + 1 दैट इज हमारा ऑड था, इवन था, दैट इज 2 इवन था, तो यहाँ पर प्लस साइन हो गया। लेकिन कोफैक्टर्स के लिए अगर हमारा i + j इज इक्वल्स टू 1 + 2 है, दैट इज 3, दैट इज ऑड,
क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर हम माइनस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सो आई गेट +3. सिमिलरली if I do a of 2 1, a of 2 1, that is for this one, I'll get 2. Okay, I'll get 2. Similarly for a 2 2, I'll get for a 2 2, okay, a 2 2, I'll get -1. But again यहाँ पर -1, और यहाँ पर i plus j फिर से कितना आ रहा है ना, 2 + 1 that is 3, which is odd. तो यहाँ पर हम माइनस डाल देंगे, और यहाँ पर जैसे हमारा था -1 रहेगा, क्योंकि i plus j is equals to 2 + 2 is equals to 4, which is even. ठीक है, तो ऐसा हमारा आ गया. ठीक है, अगर हम इसे अभी एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसा आएगा? If I'm writing this in terms of matrix, I'll get 4 + 3 और simple 3, then -2 1 1. तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें ना, ट्रांसपोज भी निकालना होता है. ओके, अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकाल दूं, कितना आएगा मेरा, कितना आएगा ना, 4 -2 then 3 and 1. मतलब जस्ट रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ. ठीक है, बस उतना ही. ठीक है, अभी ये जो मेरा निकल गया है ये वाला मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे ना, ए बी जे ऑफ ए. ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. ठीक है, so this is what is called. Now यहाँ पर देखो कि हमारा जो यहाँ पर डायगोनल है, डायगोनल देखो, 1 सेकेंड, here we are putting -1, we have -1. Okay. और यहाँ पर देखो हमारा जो पहला था मैट्रिक्स ए और ये एडजॉइंट वाला ए मैट्रिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है ना, हमारा जो डायगोनल एलिमेंट था उसमें क्या है कि बस इंटरचेंज हो गया है यहाँ पर, यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर बस चेंज हुआ है क्या, डायगोनल एलिमेंट. सो -1 की जगह 4 और 4 की जगह -1, तो इंटरचेंज हो गया. और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें बस नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ पर नेगेटिव मांगोगे तो -2, यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो प्लस हो गया, दैट इज +3. ठीक है, तो अगर हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो सिंपल क्या करेंगे, हम जो भी हमारा डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देंगे, और जो नॉन एलिमेंट्स है उसमें हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इससे हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम 3 क्रॉस 3 देखते हैं क्या प्रोसीजर हमारे पास है. फाइन, सो नेक्स्ट देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का. ठीक है, तो सेम क्या करने वाले हम, हमारा जो एक लेट्स सपोज मैट्रिक्स है इसका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स. उसके बाद हम निकालेंगे दिस इज माय कोफैक्टर्स. कोफैक्टर निकालने के बाद जो भी मेरा यहाँ पर आने वाला है इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये वाला जो है हमारा क्या है ना, ये हमारा है एडजॉइंट मैट्रिक्स. ये मेरा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, हमारा क्लियर. मेरे पास एक गिवन था ए मैट्रिक्स, इसको मैंने क्या किया ना, पहले कोफैक्टर्स निकाला, उस कोफैक्टर्स के मैंने कोफैक्टर्स ऑफ ए को मैंने ट्रांसपोज कर लिया, तो जो भी मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा है वही मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स है. क्लियर टिल नाउ? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक. So let us take an example. Let's suppose I had a is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. क्या आप लोग इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हो? Can you try with me? Let's suppose we find cofactors now. Cofactors. Okay. कितना आएगा पहले एलिमेंट के लिए? और
A11 कितना आएगा? -3 माइनस, -3 ओके, सो -3। देन अब निकालेंगे A12 के लिए, कितना आएगा? A12 के लिए कितना आएगा? +6 6 माइनस +6 -6 +6, यस प्लस +6 हाँ, क्योंकि इसका पोजीशन नेगेटिव में है, ठीक है। नाउ फॉर A13 -3 -3 3, okay, -3, good. Then same for A21 6 6 6, okay. So now for A22 -12 -3 -12 -3, कौन सा वाला? सॉरी -2 -12 -12, करेक्ट है ना? ठीक है। नाउ A23 के लिए बताओ। +6 -6 +6 +6 +6, ओके, +6, ठीक है। नाउ A31 के लिए -3 -3, ओके। देन A32 के लिए +6 +6, गुड, +6 ओके, गुड। देन A33 के लिए -3 -3, ओके, गुड। सो दिस इज आवर कोफैक्टर, बट हमें क्या निकालना है? हमें जाना है एडजॉइंट की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारा? ट्रांसपोज निकालने का, ठीक है। दैट इज कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, दैट इज Aij का हमारा जो आएगा उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। कितना आएगा बताओ? कितना आएगा ट्रांसपोज? सेम सेम आएगा, बस चेंज करना है। क्या चेंज करना है? अगर हम इसका -3 ट्रांसपोज निकालें तो -3 क्या चेंज होगा? रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा, -3, हाँ, गुड। रो कॉलम हो जाएगा और कॉलम रो हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा मेरा 6 -12 6 -3 6 -3, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि ना जो कोफैक्टर और एडजॉइंट सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल दें कि जो हमारा पहले गिवन था A, सो ये हमारा क्या होगा? हमारा एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। क्लियर? यस सर, क्लियर Clear. एवरीवन? ओके, ठीक है। सो नाउ लेट अस कम टू द, दो चीजें हमें पढ़ना है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर क्या है हमारा? जिसमें हमारा की डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, हम इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और जहां पर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन 0, तो वहां का हम बोलते हैं कि दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के तरफ, ठीक है। सो लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। सर ये जो एडजॉइंट है वो बेसिकली हमेशा एक सिंगुलर मैट्रिक्स की ही निकाली जाती है। ओके, नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है। क्लियर? एवरीवन क्लियर? ओके, गुड। राहुल, ओके फाइन। सो अभी देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के। सो अगर मैं इसकी ट्रांसपोज निकालता हूं, एडजॉइंट ऑफ
ए का अगर मैं निकालू ट्रांसपोज, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ओके, सर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, मतलब मल्टीप्लाई हुए हैं, ए एंड बी मल्टीप्लाई हुए हैं, तो वहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ ना, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. आई होप कि आप सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा, क्योंकि इसको हमने प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट किया था, सर ने आपको पढ़ाया था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट थर्ड वाला जो है हमारा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो हमेशा इक्वल होगा ए ऑफ n माइनस 1 के बराबर. ठीक है, where n is equals to order of the matrix. ओके, और यही हमारा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. क्लियर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. कैसा होगा मैं दिखाऊंगा आपको. ठीक है, तो इसको अपने जहर में डाल लो. ठीक है, so this is very very important question. Okay, now let's suppose take an example. I have a is equals to 1 2 3 3 2 1 3 4 or 2. Okay, this is my a. Can I find the determinant of adjoint of a now? Can I find the determinant of adjoint of a? Question is, find determinant of adjoint of a का determinant. Use the formula, this formula only. इसी फॉर्मूला को यूज करना है हमें और आंसर निकालना है. हमें निकालना है पहले कि n क्या है. n है 3 क्रॉस 3, दैट इज n है हमारा 3, nth और थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है हमारा. तो फॉर्मूला क्या आएगा ना, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे n माइनस 1 करेंगे, दैट इज 3 माइनस 1. अब मेरे को बताओ कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा. हमारे पास जो ए है इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, बताओ. Am I audible? Hello? Yes, sir. हाँ, तो बताओ ना. तो 12 आ जाएगा. 12, sir. 12 आ रहे हैं. ओके ओके, अभी ये हमारा 12 आ गया. Yes, sir. ठीक है, तो अब अभी हम निकालेंगे कितना, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा, उसका मॉडुलस कितना आएगा, मतलब हमारा ए का मॉडुलस है उसका बस टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज 12 टू द पावर 2. कितना आएगा 2. 144. 2, हाँ, टू द पावर 2, यस. सो हमारा आएगा 144. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, Okay, sir. good. Avib sir, Rahul, good. Okay, everyone, good. Fine. So ऐसे ही अगर हमको क्वेश्चन आ रहा है हमारे एग्जाम में, तो ऐसे ही हमको सॉल्व करना है. तो इससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं. तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर? नाउ लेट अस सी सम ऑफ मोर प्रॉपर्टीज. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या ना, अगर हमारा जो डायरेक्ट डिटरमिनेंट है उसको हम मल्टीप्लाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा ना, डायरेक्ट हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा. ओके, ये जो मैट्रिक्स ए है उसको अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास डायरेक्ट मॉडुलस डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा. ठीक है, ये हमारे 4 प्रॉपर्टीज है. ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ पर ये हमारे 4 प्रॉपर्टीज को याद रखना है. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4. फाइन, चलो अब नेक्स्ट वन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है,
तो इसको हम डिनोट करते हैं कैसे ना, ए इनवर्स से, ए इनवर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए इनवर्स को वो कैसे लिखते हैं ना, 1/a, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। सो दिस इज रॉन्ग। सो ए ऑफ इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू 1/a, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, फाइन, ओके। सो ये जो हमारा इनवर्स है, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। जितने भी हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स है उनके लिए हमारा इनवर्स निकल सकता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सो देख लेते हैं पहले कि फॉर्मूला क्या है। सो इनवर्स ऑफ ए के लिए फॉर्मूला जो है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, गुड। सो यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं कि कैसे इसको निकालना होता है, ठीक है। दैट इज, लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 3 4 2, ठीक है। इसका हम निकालेंगे इनवर्स। क्या करेंगे, पहले पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट, फिर हम निकालेंगे क्या, डिटरमिनेंट, उसके बाद देखेंगे इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एक स्मार्ट ट्रिक लगा सकते हैं कि पहले हम फाइंड कर लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, इफ इट इज ओनली नॉट 0 देन ओनली विल फाइंड टू एडजॉइंट। अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा ना, ये जो हमारा इनवर्स ऑफ ए है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज समथिंग बाय 0 विल बी अनडिफाइंड, है ना। सो पहले हम निकालेंगे हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और उसके बाद डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ मेरे को कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा? ये क्वेश्चन हमने कर लिया है अभी, नोटबुक पे पीछे देखो कितना आया था। बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा? पहले कोफैक्टर निकालो, उसके बाद उसको एडजॉइंट निकालो। नहीं नहीं, मैं उसके वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग द मॉडुलस, आई एम नॉट आस्किंग मॉडुलस, आई एम आस्किंग व्हाट इज द मैट्रिक्स। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे ना, ए का जो है कोफैक्टर्स, दैट इज ए आई से निकालो कोफैक्टर्स, ए निकालो, कितना आ रहा है बताओ, कोफैक्टर कितना आएगा इसके लिए, कितना आएगा? ये 1 1 0 हाँ 0, देन गुड, -3 नेक्स्ट इसके लिए -3 -3 6, ओके गुड, देन 8 फाइन। अभी रो 2 के लिए -7 8 -7 -7, 2 हाँ -7 2, -4 okay, this is 2 9 or 6, this is my 2, fine, then -4 8, -4 8 हाँ -4 then -4 गुड। अब इसका निकालो, क्या ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालो, दैट इज आवर आर्ट, that will be equals to 0 8 minus 0 4, 8 4 -3 Okay, then? -7 8 okay 6 6 8 2 -4 minus 4, ठीक है, ओके। सो दिस इज माय एडजॉइंट, और मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, दैट इज 12, मैंने अभी निकाला था, है ना।
तो अब हमें इनवर्स के लिए क्या करना है, बस डिवाइड कर लेना है. सो इनवर्स ऑफ ए दैट इज ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1/12 इंटू मेरा जो मैट्रिक्स था कितना आया था, 0 8 -4 -3 -7 8 6 2 -4. दिस इज माय आंसर. ओके, सो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालना है, क्या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. क्लियर हो गया? Yes, sir. Clear. एनी डाउट्स हियर? तो एग्जाम में आएगा तो कर सकते हो. यस सर. ओके फाइन, ठीक है, गुड. ओके, सो अभी देखते हैं क्या हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स. ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, उसका मैं अगर इनवर्स निकाला हूं तो मेरे पास कितना आएगा ना, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. मतलब ए बी का टोटल इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स आएगा. क्लियर? दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी. Second property, if I want to find the transpose of A inverse, that will be equals to transpose of A का whole inverse. ठीक है. थर्ड वन, अगर मैं A इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 1/A डिटरमिनेंट आएगा. लेकिन 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 कंफ्यूज मत होना, A inverse is not equals to 1/A. ठीक है, but A inverse is not equals to 1/A. ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया. अगर मेरा एक मैट्रिक्स गिवन है A और उसका मैं निकाल रहा हूँ क्या, मैं इनवर्स निकाल रहा हूँ और उसका मॉडुलस निकाल रहा हूँ, तो उसका जो वैल्यू बराबर होगा किसके, ना 1/A की. क्लियर? Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. Fine. So this is okay. Good. Fine. So this is what the property says. So तीन properties है. ठीक है. और छोटे मोटे और प्रॉपर्टीज है. अगर मेरा A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, तो मेरा जो A इनवर्स होगा वो भी एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा. ओके, सेम अगर A मेरा एक सिमेट्रिकल A मेरा लेट्स सपोज स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स जो होगा वो भी मेरा स्केलर मैट्रिक्स होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर A मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है तो A इनवर्स भी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स होने वाला है. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर. सही है सर? नो? ओके गुड फाइन. अभी देखते हैं थोड़ा सा एक और मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स. तो कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है ना, जहां पर भी मेरे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट मैट्रिक्स. और जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर हम बोलते हैं कि इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स. कहां पर, अगर मेरे पास गिवन है एक सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, एक सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर उसका मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं तो उसको मैं बोलता हूं कंसिस्टेंट. अगर कोई वैल्यू नहीं निकलता तो उसको बोलते हैं कि इनकंसिस्टेंट. ओके, तो इसके बेसिस पे हम निकालेंगे क्या, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस. ठीक है, मतलब क्या कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, उसमें हम एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालने वाले हैं. ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z is equals to t1. First equation. Second equation is a2x plus b2y plus
C2Z is equals to D2. Third equation is A3X plus B3Y plus C3Z is equals to D2. ओके, मेरे पास तीन इक्वेशंस है, ठीक है। यहाँ पर x और y और z का वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो हम यूज करेंगे ये वाला क्या ना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे लिखना है इसको? इसको हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मेरा A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 को एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं नेम दूंगा मैट्रिक्स A। X Y Z को एक और मैट्रिक्स बनाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा कैपिटल X मैट्रिक्स, और इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू मेरा B1 B2 और D3 मैट्रिक्स के बराबर है। इसको मैं दे दूंगा लेट्स सपोज दिस इज माय B मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेरे पास तीन मैट्रिक्स है जहां पर कि मैंने एलएचएस के सारे जितने थे हमारे क्या ना कांस्टेंट वैल्यू A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 को मैंने एक मैट्रिक्स में रखा, एक्स वाई जेड को मैंने अनदर मैट्रिक्स में रखा, और राइट साइड के मेरे जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज थे उसको मैंने एक और मैट्रिक्स में लिख दिया है, ठीक है। और इसको मैंने नाम दिया A X एंड B। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट AX is equals to B, ठीक है। Am I clear? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर हमारे दो कंडीशन आते हैं, यहाँ पर हमारे दो कंडीशन आते हैं, ठीक है। क्या ना देखते हैं हमारा केस वन। अगर लेट्स सपोज मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो वैल्यू है अगर इज दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज मीन एनी कांस्टेंट वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, तो क्या लिख सकता हूं मैं, अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी है, सो मैंने दो साइड में भी क्या करूंगा, मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, ए इनवर्स दैट इनटू हियर ए इनटू एक्स, यहाँ पर बी। नाउ ये वाला जो मेरा टर्म है ए इनवर्स इनटू ए दैट विल बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा आएगा ना, ये जो मेरा एक्स वाई कैसा होगा ना, एक्स वाई और जेड के फॉर्मूला में होगा, और ये मेरा कुछ ऐसे एक मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा और यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा। तो मेरा जो एक्स का वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगा, वाई का वैल्यू है इसके बराबर, और जेड का वैल्यू इसके बराबर आएगा। क्लियर? दिस इज व्हाट केस वन सेज। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएंगे ना, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशंस मेरे पास आएंगे, ठीक है। मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, एक्स के लिए एक ही वैल्यू, वाई के लिए एक ही वैल्यू, और जेड के लिए भी एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। नाउ केस टू सेज, केस टू, अगर यहाँ पर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर हो जाता है तो यहां पर भी हमारे दो केसेस आएंगे। जब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ जो है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर मेरा जीरो हो रहा है तो क्या होगा, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा। तो अगर मेरा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो हो गया तो देयर विल बी नो सॉल्यूशंस, देयर विल बी नो सॉल्यूशंस। एंड अगर मेरे पास इट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, सो मोर देन वन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर?
फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि मेरे पास हम क्या पढ़ रहे हैं हम ना, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो वहां पर मैं लिख सकता हूँ ax इंटू बी वाई के सॉरी ax इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अगर इसमें मैंने लिख दिया तो मेरे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जहां पर कि मेरा मॉडुलस ऑफ ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है और एक पर जीरो के बराबर है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा जीरो नहीं है तो मेरे यहाँ क्या आएगा ना, यूनिक सोल्यूशन आएगा, ओनली वन सोल्यूशन आएगा। अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो रहा है तो फिर से मुझे को क्या चेक करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इट कमिंग जीरो और नॉन जीरो। इफ इट इज जीरो then I have no solutions. If it is non-zero, then I have more than one, that is infinitely many solutions. Am I clear till now? Yes, sir. Yes, Am I sir. clear? Yes, sir. Okay. So यहाँ तक की हमारी थ्योरेटिकल बातें थी, ठीक है। लेकिन इसको कैसे करना है चलिए एक एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। Okay. Let's suppose I have a set of system of linear equation. Let's suppose 3x minus 2y plus 3z equals to 8, 2x plus y minus z is equals to 1, and 4x minus 3y plus 2z is equals to 4. ये मेरे पास तीन इक्वेशंस है, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लेट अस सॉल्व इट। ओके, यहाँ पर फाइंड करेंगे कि x, y एंड z की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप व्हाट इट इज, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि a, b और x क्या है। व्हाट इज a? टेल मी व्हाट इज a? 3 minus 2, 3, 2, 1 minus 1, 2, 3, yes. Minus 1, 4 minus 3, 2. 4 minus 3, 2. Good. Now what is capital X? X, Y, What is Z. capital X? X, Y, Z. और B का वैल्यू कितना है? 8, 1, 4. 8, 1, 4. Others, is it correct? Or she is saying something wrong? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All of you agree? Good. Fine. तो अभी हम क्या करेंगे कि हम देखने वाले हैं कि जो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए है दैट इज इक्वल्स टू जीरो और इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए and tell me what is the value of determinant of a. चार्ज में गिरा बॉक्सी देख लो। Yes, what is the determinant of a? मिला वैल्यू, एक्सपैंड करो, मिल जाएगा। Yes, anyone? ओके, तो मेरे को ही करना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरा, इसके हिसाब से करो तो कितना आएगा, 3 इंटू कितना आएगा, 2 माइनस 3 देन प्लस 2 इंटू इसके हिसाब से करूँ माइनस प्लस इसके हिसाब से करूँ 4 प्लस 4 माइनस 17। ओके गुड, 3 इंटू अदर्स माइनस 4 minus 17, everyone? Yes, sir. Minus 17, okay. So minus 17 is not equals to 0, isn't it? So जो मेरा determinant of A है, that is not equals to
0. So it has how many solutions? How many solutions does it have? Only one. One solution, two solutions, infinitely many? No solutions. Only one solutions. Yes. So only one solution. Okay. It has only one solutions. Correct? Fine. अब निकालते हैं जो सोल्यूशन एक ही है तो x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है और z का वैल्यू कितना है. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a is not equals to 0, so what I have ax equals to b, so inverse into ax is equals to inverse of a into b. Taking this one, then I have x is equals to a inverse into b. तो x का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को फर्स्ट निकालना पड़ेगा क्या, इनवर्स ऑफ a, देन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b के साथ. नाउ फाइंड a इनवर्स कितना आएगा, फाइंड करो. हाउ टू फाइंड a इनवर्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्टेप्स? और एटलीस्ट द फॉर्मूला. इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Adjoint of a by Adjoint of determinant by y. modular. Determinant of Yes, adjoint of a divided by determinant of a. तो अभी निकालो determinant of a कितना है, that is -17, and now you have to find adjoint of a. So adjoint of a कितना है? बताओ कितना है? पहले कोफैक्टर्स निकालो. व्हाट इज कोफैक्टर्स? पहले निकालो कोफैक्टर ऑफ ए कितना आ रहा है, उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट. So -1, रो 1 का कितना आ रहा है? यस, -1, -1, -8, -1, -8, -10, -10. गुड. -10, रो 2 के लिए -5, करेक्ट. -5, -6, -6, 1, 1, 1. गुड. देन रो 3 के लिए -1, -1, -1, -1, 9, 9, -7, -7, -7 और +7. ओके, अदर्स? 6, 7, -7 और +7. +7. +1, हाँ, +7 होगा. +7. तो चेक कर लो. हाँ, चेक कर लो एक बार कि ये +7 आएगा. ठीक है. ओके, हाँ, yes, sir, अब +7. बताओ मेरे को इसको अगर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है ना? करेक्ट. ओके, तो एडजॉइंट ऑफ कितना आएगा? ट्रांसपोज ले लेंगे बस. दैट इज -1 एंड देन -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7. ठीक है. दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए. अब क्या करना है कि बस डिवाइड कर दो 1 बाई मॉडुलस ए, डिवाइड कर दो. कितना आएगा? इनटू 1 बाई -70, दैट इज -1/17. ओके, दिस इज माय आंसर. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन क्लियर? ओके, गुड. ठीक है. तो ऐसे हम निकालते हैं क्या ना, हमारा एडजॉइंट और इनवर्स है, और इनवर्स ऑफ ए निकाल गया. अब क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Multiply यस, बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. अब हमारा क्या आ गया ना, ए इनवर्स इनटू बी करो. तो ए इनवर्स कितना है मेरे पास यहाँ पर? 1 -1, 1 बाई
minus 17 into minus 1 minus 5 minus 1 minus 8 minus 6 9 minus 10 1 7 into कितना आएगा मेरा b, दैट इज b कितना आया था 814 मल्टीप्लाई करो, बताओ मेरे को कितना है। -1/17 को एज इट इज रख लो। ओके, पहले चेक करो कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। दिस इज 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 1। सो यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर भी 3 है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा ना, ये जो पूरा रो है इसको लेके उठा के यहाँ पर रख दो फर्स्ट वैल्यू के लिए, सेकंड वैल्यू के लिए इस रो को लेके यहाँ पर पटक दो, थर्ड के लिए इसको लेके यहाँ पर पटक दो, बस वैल्यू आ जाएगा। सो कितना आएगा बताओ। -17 पहले के -8 -5, हाँ -6 + 36 -80 +1 +28 कितना आ रहा है -17 बताओ कितना आ रहा है। -17 -34 देन 34 देन -51 -51 51। गुड इन फ्रंट, यस सेम आ रहा है सबका, yes Yes, sir sir. सबका सेम आ रहा है। ओके Yes, गुड, sir. ठीक है ठीक है। अभी ये जो हमारा स्केलर है इसको लेके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1 2 3 1 2 3 कितना आएगा 1 2 3, यस 1 2 3 आएगा मेरा यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये मेरा कितना है a इनवर्स इंटू बी, दैट इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहाँ पर ओके नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल्स टू 1 2 3। x का वैल्यू कितना था, दैट इज स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z इज इक्वल्स टू 1 2 3। सो x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू कितना है बताओ। 1 2 and 3 X1 Y2 Z3 because of the equality of matrices. Yes, correct. So इसका जो वैल्यू था a के बराबर, y का वैल्यू 2 के बराबर और z का वैल्यू 3 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बात क्लियर यहाँ तक। yes sir ठीक है, Yes, sir. अभी सारा आपको बनाना नहीं था। ओके गुड गुड गुड, ओके फाइन, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अभी हमारा कुछ बचा की है। ओके ओके, सो यहाँ पर देखो जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, have you covered it? डिटरमिनेंट्स पढ़ा, यस yes sir yes sir ओके। माइनस को फैक्टर्स डन, Yes, sir. application of Yes, sir. determinants to Yes, find sir. the area of the triangle done, Yes, sir. adjoint inverse done, consistency, Yes, sir. inconsistency, and the number of solutions of the system. One solution, no solution, infinitely many solutions, that is also done. And solve with the system of equations yes sir of 3 variables on 2 variables, unique solutions, inverse of matrix. हो गया सारा? yes sir yes sir Okay. Okay. Yes, sir. So any doubts, any Okay. questions from this chapter? no sir No? Anyone else having any doubts? no sir और भी कुछ भी पूछना हो? No, sir. ओके ओके ओके। तो फाइनली हमने ये जो चैप्टर था डिटरमिनेंट्स का, उसको सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्लास यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, डिटरमिनेंट्स का चैप्टर इज ओवर। ओके, सो सुभाषिश सर, आर यू Thank you, sir. thank you sir हियर?
Yes, sir. Yes, sir. So thank you, dear students, for today's sessions. And here is with our Soham sir. So if you have any doubt, then you can ask, and you can also be motivated by Soham sir, I hope. So thank you for attending today's sessions. If you have any doubt, then you can ask. Otherwise, you can leave. Thank you, sir. Yes, yes. Thank you so much.